गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम करेंगे सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन temperature. The chemical reaction in which the reactants require high amount of activation energy are slow. Arrhenius equation is K is equal to A into E raised to power minus EA upon RT. Identify the order of reaction from the given rate constant. K is equal to 2.6 into 10 raised to power minus 4 liter mole inverse second inverse. तो एक important trick है, इस तरह के questions में हम order of reaction रेट कांस्टेंट की यूनिट से निकाल सकते हैं। और ट्रिक ये है कि आप लीटर की जितनी भी पावर है उसमें 1 प्लस कर दें, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। यहाँ पावर 1 है तो 1 + 1 2, सो इट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ही मोल पर लीटर रेज टू पावर 1 माइनस n और सेकेंड इनवर्स से आप यूनिट्स निकाल सकते हैं के की। तो 1 माइनस, अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 - 1 हो गया 0, सो दैट मीन्स स्मॉल 0 एंड -1 into 0 इज ऑल्सो 0। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट्स हो जाएंगी सेकेंड इनवर्स, लेकिन यहाँ ऑप्शंस में हम टाइम इनवर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। इफ द कंसंट्रेशन आर एक्सप्रेस्ड इन मोल्स पर लीटर एंड टाइम इन सेकेंड्स, देन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ऑप्शन सेकेंड इनवर्स है ये। Arrhenius equation is represented by K is equal to A into E raised to power minus EA upon RT. Role of catalyst is to change the activation energy of a reaction. Units of rate constant for first order reaction is second inverse. Units of rate constant for second order reaction, again mole liter inverse raised to power 1 minus 2 and second inverse. So -1 mole -1 liter 1 second inverse. A reaction is found to be of second order with respect to concentration of carbon monoxide. So if concentration of carbon monoxide is doubled, the rate of reaction will rate is equal to K into concentration of carbon monoxide, let it be X raised to power 2, means we get 2X raised to power 2, then rate 2 will be rate 2 upon rate 1 is equal to K into 2X upon K into X the whole raised to power 2. So we get 2 raised to power 2. Rate 2 is equal to 2 raised to power 2 rate 1, or rate 2 is 4 times rate 1. So increased by a factor of 4. Unit of rate of a reaction is mole per liter second inverse. The unit of rate constant for first order reaction is second inverse. For a chemical change A into B, it is found that the rate doubles when the concentration is increased 4 times. So rate is equal to K into A raised to power n. Rate 2 will be K into concentration 4 times 4A raised to power n. So rate 2 upon rate 1 will be K into 4A raised to power n upon K into A raised to power n. So in all it is 4 raised to power n. Rate 2 upon rate 1. Now rate 2 is double
rate 1, so that means 2 is equal to 4 raised to power n. N is equal to 1, n is equal to 1 by 2. So order of reaction is half. The specific rate constant of a first order reaction depends upon temperature. First order reaction is 75% complete in 60 minutes. 50% of reaction will be completed in 50. Reaction will be 2.303 upon T, यानी कि 60 log of 100 upon 100 minus 75, 100 upon 25, which is log 4 or 2 raised to power 2. So K is 2.303 upon 60 into 2 into 0.3010. Now 2.303 into 0.3010 is 0.693 and 2 upon ये 2 and 60 will cancel और 30 आ जाएगा. तो 0.693 upon 30 आ गया जब 75% कंप्लीट था. और टी हाफ क्या होता है 0.693 अपॉन के, और के हमने क्या निकाला है 0.693 इंटू 30. ये कैंसिल हो गया, 30 मिनट्स आंसर आ गया ऑप्शन बी. The rate constant of a reaction is 1.2 into 10 raised to power minus 5 mole raised to power minus 2 liter to second inverse. Order of reaction क्या हो जाएगा, हमने बोला है लीटर की जो पावर होती है उसमें 1 प्लस कर देंगे, दैट मीन्स थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा. टाइम टेकन फॉर 99.9% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर टू कंप्लीट इज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम्स इट्स हाफ लाइफ. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हाफ लाइफ से रिलेट करना है. तो एक इक्वेशन हो जाएगी हमारी 99.9% रिएक्शन के लिए. तो आ गया T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log of 100 अपॉन 100 माइनस 99.9. तो ये आ गया 100 अपॉन 100 माइनस 99.9 हो गया 0.1. तो 0.1 को कैंसिल आउट किया तो 10 ऊपर आ गया, तो ये 1000 आ गया. तो 2.303 T इज इक्वल टू 2.303 लॉग 1000 हो गया 3 अपॉन K. और T हाफ क्या होता है 0.693 अपॉन K, या फिर हम कह सकते हैं 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन K. तो अब T अपॉन T हाफ में K और K कैंसिल हो गया, 2.303 अपॉन ये और ये 3 अपॉन 0.3, ये कितना हो गया 10. और दैट मीन्स T अपॉन T हाफ इज इक्वल टू 10, या T इज इक्वल टू 10 टाइम्स T हाफ. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Which one of the following does not influence the reaction rate? So the molecularity of reaction will not influence the reaction rate. A catalyst lowers the activation energy of the forward reaction by 10 kilojoule per mole. What effect it has on the activation energy of backward reaction? वहाँ भी वही होता है, तो decreases by 10 kilojoule per mole. Radioactive decay follows first order kinetics. ये first order reaction होता है. The units of rate constant and rate of reaction are identical for zero order reaction, mole per liter per second. रेट कांस्टेंट और रेट दोनों की जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सेम होती है. द यूनिट्स फॉर रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आर, तो ये आ गया 1 माइनस 2 हो गया -1, तो मोल -1 एंड लीटर.
second inverse, option A. Half-life reaction is halved as initial concentration of reactant is doubled. The order of reaction, हमारे पास फॉर्मूला है T half is proportional to 1/A raised to power n-1. तो अगर फर्स्ट केस में ये T half है और सेकेंड केस में ये T half 2 है, तो T half 2 हाफ हो जाएगी जब हमने A को डबल कर दिया. तो इस इक्वेशन में अब A की जगह हम 2A लिख रहे हैं और T half 2 अपॉन T half 1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2 इंटू ये वाली टर्म ऊपर चली गई, वो वाली नीचे आ गई, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्योंकि T half 2 इज हाफ ऑफ T half 1, तो हाफ ऑफ T half 1 अपॉन T half 1 ये कैंसिल आउट हो गया. हाफ इज इक्वल टू हाफ और A भी कैंसिल हो गया, रेज टू पावर n-1, तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू n-1, तो n इज इक्वल टू 2 आ गया. सो आंसर शुड बी 2. फॉर अ pseudo first order reaction, acetate plus water in presence of acid forms acetic acid plus C2H5OH. Net rate is given by dx by dt is equal to 4.0 into 10 to the power minus 4 liter mole inverse second inverse into concentration of ester. अब concentration of ester ये K और ये concentration of ester means कि the rate is proportional to concentration of reactant means ये forward reaction है. और इसी तरह dx is equal to this into concentration of ये वाले एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल यहाँ प्रोडक्ट्स हैं. तो अगर प्रोडक्ट्स एज रिएक्टेंट एक्ट कर रहे हैं तो ये बैकवर्ड रिएक्शन है. और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है KF अपॉन KB. तो KF की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 4 इंटू 10⁻⁴ और KB की है 4 इंटू 10⁻⁴ और KB की वैल्यू दी है 3 इंटू 10⁻⁴. तो ये 10⁻⁴ ऊपर जाके -4 हो जाएगा, -4 एंड -4 -8 और 4/3 आया 1.33. तो आंसर इज D, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट. तो हमने बोला रेट कांस्टेंट की यूनिट्स में लीटर की जो भी यूनिट होती है उसमें 1 प्लस कर देंगे, तो ये सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा. फॉर अ रिएक्शन x plus y forms products, the rate law is given by rate is equal to k into x raised to power 3/2 into y raised to power 1/2. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, दोनों की पावर्स को प्लस कर लेंगे. 3/2 प्लस 1/2 हो गया 4/2 विच इज 2. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 2. आपको जितने भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हैं उनकी एग्जांपल ज़रूर करनी चाहिए. तो जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की एग्जांपल्स हैं H2 plus Cl2 in presence of sunlight forms HCl, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. अमोनिया की डीकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. फॉस्फीन की डीकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और HI की डीकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. इसी तरह कुछ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की एग्जांपल्स आप करेंगे. N2O5 की डीकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. हाइड्रोजन परऑक्साइड की डीकम्पोजिशन भी फर्स्ट ऑर्डर है और अमोनियम नाइट्राइड की डीकम्पोजिशन भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल्स याद करेंगे. NO2 plus F2 फॉर्म्स NO2F, ये भी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है. और 2HI गिव्स H2 plus I2, ये भी सेकेंड ऑर्डर है. और एस्टर एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, एस्टर प्लस NaOH गिव्स सोडियम एसिटेट प्लस अल्कोहल, ये भी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल्स 2NO plus Cl2 गिव्स 2NOCl, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है. 2NO plus O2 gives 2NO2 is also third order reaction. Then pseudo unimolecular reaction जिनका एक्चुअली ऑर्डर सेकेंड होता है लेकिन रेट लॉ इक्वेशन में वो एक के पे डिपेंडेंट होते हैं, उनको सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं.
तो एस्टर की एसिडिक हाइड्रोलिसिस सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, और इसी तरह इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। फिर आपसे फ्रैक्शनल ऑर्डर भी पूछा जा सकता है, तो एसिटाल्डिहाइड का ब्रेकअप और क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनेशन, ये जो हैं ये फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है। के की यूनिट्स निकालने के लिए आप लिखेंगे कि यूनिट्स ऑफ के इज इक्वल टू मोल पर लीटर रेज टू पावर 1 - n और सेकेंड इनवर्स, और जो भी ऑर्डर दिया है उसकी वैल्यू यहाँ पुट करके आप यूनिट्स निकाल सकते हैं। इसी तरह ऑर्डर कैसे निकालेंगे, अगर यूनिट्स दी होंगी तो आपकी जो भी लीटर की यूनिट्स है ना उसमें 1 प्लस कर दीजिए। लीटर -1 + 1 हो गया 0, तो ऑर्डर हो गया 0। इसी तरह सेकेंड इनवर्स में लीटर 0 है, +1 कर दिया तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया। लीटर यहाँ 1 है, +1 कर दिया तो सेकेंड ऑर्डर हो गया। लीटर यहाँ 2 है, +1 कर दिया तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। देन ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स का आपसे पूछा जा सकता है, इवन 3 मार्क्स का। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या डिराइव इंटीग्रेटेड rate equation for first order reaction. For the reaction reactant changing to product, rate will be decrease in concentration of reactant with time. So minus d of r upon dt will be equal to k into r raised to power, क्योंकि order of reaction 1 है, first order है तो 1 आ गया। तो अब इसमें हम R को इधर ले गए और T को इधर ले गए, तो एक्सप्रेशन बनती है -dr/r इज इक्वल टू kdt। अब इसकी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस को इधर ले गए, इसकी इंटीग्रेशन की तो वी गेट इंटेग्रल ऑफ dr/r इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ -kdt। सो इंटीग्रेशन करने पर इंटेग्रल ऑफ dr/r होता है ln r, और इसी तरह -kdt का इंटेग्रल होता है -kt + i। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई ln r इज इक्वल टू -kt + i। अब इसमें i है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इसको फाइंड आउट करने के लिए हम कंडीशन पुट कर देंगे, लेट t बी 0। तो जब t 0 होगा उस टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी इनिशियल कंसंट्रेशन R0। तो एक्सप्रेशन बन जाएगी ln r की जगह R0 इज इक्वल टू -k इंटू t हो गया है 0 + i। तो ये 0 हो गया तो i इज इक्वल टू ln R0 आ गया। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ln r इज इक्वल टू -kt + ln R0। इसको इधर ले गए और इसको इधर ले आए तो हमारे पास आ गया ln R0 - ln r इज इक्वल टू +kt। तो log a - b होता है log a/b, तो kt इज इक्वल टू ln R0 अपॉन r आ गया। अब नेचुरल लॉग को टू द बेस 10 करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा kt इज इक्वल टू 2.3 log R0 अपॉन r, या kt को भी इधर ले गए, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log R0 upon r. This is the integrated rate expression for first order reaction. इसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जिसके पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आया उसके पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, डिराइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें भी for the reaction rate changes to products, reactants change to product, rate is equal to -dr upon dt is equal to k into r raised to power 0 यहाँ आ जाएगा क्योंकि order of reaction 0 है। तो k r raised to power 0 is 1, तो हमारे पास आया -dr is equal to k dt, dt को इधर ले गए k dt, तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा r is equal to -kt + i। लेकिन i की वैल्यू निकालने के लिए t को 0 कर लेंगे तो उस टाइम पे r हो जाएगा R0। सो R0 इज इक्वल टू k इंटू 0 हो गया 0 + i, सो i हो गया R0। इसकी वैल्यू जब इस इक्वेशन में यहाँ सब्स्टिट्यूट की तो r इज इक्वल टू -kt + R0 आ गया, या kt को इधर ले गए और r को इधर ले आए तो R0 - r इज इक्वल टू kt, या t को नीचे ले गए, k को नीचे ले गए
तो T इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन के आ गया. दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. एक और क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है वो है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स, ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. और हाफ लाइफ होता है वो टाइम जब कंसंट्रेशन जो है आधी रह जाती है, यानी A माइनस एक्स आ जाएगा हाफ ऑफ A. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में T हाफ तब होगा जब X A अपॉन 2 होगा. तो ये A अपॉन 2 यहाँ डाल दिया तो हमारे पास आ गया K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T हाफ लॉग A अपॉन A माइनस A हाफ. A माइनस A हाफ हो गया A अपॉन 2. A और A कैंसिल हो गया और 2 ऊपर चला गया तो ये लॉग 2 आ गया. तो हमारे पास आया T हाफ इज इक्वल टू 2.303 K लॉग 2. लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आता है 0.693 और नीचे है K. तो ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला भी आ जाता है आपके पास. तो ये क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा, या तो आपको डिराइव करना पूछा जाएगा या वो आपको K या T हाफ की वैल्यू दे देंगे और दूसरी चीज़ आपको निकालने को देंगे. K दे दिया और पूछ रहे हैं T हाफ कितना है, या T हाफ दे दिया और पूछ रहे हैं K कितना है. तो या तो न्यूमेरिकल आएगा या ये डिराइव करना आएगा. तो ये 3 क्वेश्चंस में से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. और अगर आपको वो कहते हैं डिराइव हाफ लाइफ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो हमें पता है हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाली थी ज़ीरो ऑर्डर के लिए, T इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन के. तो जिस टाइम आर नॉट आधा रह जाएगा तो ये यानी कि ये आर नॉट अपॉन 2 है, तो हमारे पास आ जाएगा T इज इक्वल टू आर माइनस आर नॉट अपॉन 2, यानी आर माइनस हाफ आर नॉट हुआ आर नॉट अपॉन 2 के. तो ये एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन आ गया. ये भी आपसे पूछा जा सकता है. गिव डिफरेंसेस बिटवीन मॉलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो लेट अस डू द डिफरेंस. Molecularity is the number of atoms or ions or molecule actually taking part so that products are formed or so as to result in a chemical reaction. Order of reaction is the sum of exponents to which the concentration terms must be raised in the rate law equation. Molecularity is always a whole number, लेकिन order जो है zero भी हो सकता है, whole number भी हो सकता है, fraction भी हो सकता है. कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिकुलरिटी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं. इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड फ्रॉम स्टोइकियोमेट्री ऑफ द इक्वेशन. ओवरऑल मॉलिकुलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हैज़ नो मीनिंग. मॉलिकुलरिटी हम हमेशा सिंपल एलिमेंट्री स्टेप से ही निकालते हैं. और ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है, it is the order of the slowest step involved in it. Molecularity simple reactions में molecularity stoichiometry से obtain हो सकती है, लेकिन order of reaction stoichiometry से observe नहीं होता है, experimental value से ही observe होता है. एक और difference वाला question है जो पूछा जा सकता है, वो है difference between rate of reaction and reaction rate constant. पहला डिफरेंस इनकी डेफिनेशन हो जाएगा. रेट ऑफ रिएक्शन इज द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम. जबकि रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन द रेट लॉ इक्वेशन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन एज unity. Any particular instant of time depends upon the concentration of reactants at that instant of time. जबकि rate constant की value concentration पे depend ही नहीं करती है. It is independent of molar concentration of reactants and it is constant at a particular temperature. Rate की units हमेशा ही moles per liter per time होती है, जबकि rate constant की unit order of reaction पे depend करती है. तो दीज आर इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस बेस्ड. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपकी इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन होती है T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग A अपॉन A माइनस एक्स, या लॉग A नॉट अपॉन
ए। के की वैल्यू दी हुई है आपको और आपको बोला है टी हाफ निकालिए, तो टी हाफ कैसे निकलेगा, 0.693 को के से डिवाइड कर दीजिए। समटाइम्स आपसे पूछा जाता है फाइंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइव्स, और आपको n दिया होता है, तो फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट इज इक्वल टू a/2 पर जो भी हाफ लाइव्स है, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। इसी तरह आर्हीनियस इक्वेशन पूछी जाती है, व्हाट इज आर्हीनियस इक्वेशन, k इज इक्वल टू a इंटू e⁻⁻RT। फॉर्मूला यूज करते हैं log k इज इक्वल टू -e/2.303 RT प्लस log e। इसके अलावा कई बार एक न्यूमेरिकल में 2 रेट कॉन्स्टेंट्स और 2 टेम्परेचर्स दिए होते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी निकालने को बोला जाता है, तब आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे log K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303 और T2 माइनस T1/T1 T2। देन कुछ इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स हैं जिन पे बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि रेट वर्सेस कंसंट्रेशन से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। अगर रेट वर्सेस कंसंट्रेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और अगर रेट कंसंट्रेशन के बढ़ने से रेट बढ़ रहा है तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, और अगर रेट वर्सेस ए स्क्वायर में स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जा रही है तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। रेट अगर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ हो तब भी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पहचान सकते हैं। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में अगर आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ आ रहा है तो इट इज़ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लॉग ए वर्सेस टी और वैसा ही ग्राफ है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है नॉट। इसी तरह अगर 1/a वर्सेस टी का ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तब ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। देन टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन बढ़ने से टी हाफ की वैल्यू भी बढ़ रही है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन और पैरेलल टू कंसंट्रेशन एक्सिस आ रहा है तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और अगर 1/a0 के बढ़ने से टी हाफ बढ़ रहा है तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। इसी तरह टेम्परेचर के चेंज होने से जनरली रेट ऑफ रिएक्शन डबल या इससे भी ज़्यादा हो जाता है, इवन 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर में। ऐसा होता है क्योंकि कम टेम्परेचर पे अगर ग्राफ इस तरीके से आ रहा है तो इतने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है और ये इतने मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, लेकिन 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से ग्राफ राइट की ओर शिफ्ट हो जाता है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड मोर जो है वो डबल या इससे ज़्यादा हो जाता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाता है। देन ये तो हो गए इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो आपने लर्न करनी है इस रिएक्शन के लिए। तो लेट अस जस्ट डिस्कस एलिमेंट्री रिएक्शन। एक रिएक्शन जो कि एक ही स्टेप में प्रोडक्ट बना देता है उसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। इसमें साइमल्टेनियसली रिएक्टेंट्स कोलाइड होते हैं और प्रोडक्ट्स बना देते हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम जो है उसको रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। Rate constant is the constant of proportionality in the rate law equation when concentration of reactants is taken as unity. Pseudo-unimolecular reaction, reactions having molecularity 2 but order of reaction 1 are called pseudo-unimolecular reaction. Molecularity, the number of atoms, ions or molecules which collide simultaneously so as to result in a chemical reaction is called molecularity. Order of reaction, sum of the exponents to the which the concentration terms must be raised in the rate law expression to express the observed rate of reaction is called order of reaction. Half-life time is the time during which the concentration of reactants is reduced to half of its initial concentration. Rate law is the mathematical expression which represents the actual rate of reaction in terms of concentration of reacting species which influence the rate of reaction. Activation energy is the extra amount of energy which is needed to be absorbed so that the energy becomes equal to the threshold energy is called activation energy. अगर इतनी reactants की energy है तो threshold energy इतनी है
तो इनका डिफरेंस एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगा प्रोडक्ट्स में चेंज करने के लिए. Photochemical reaction is the reaction which does not take place in the dark but takes place in presence of light. तो ऐसे reactions को photochemical reaction कहते हैं. Law of mass action states that the rate of a reaction is proportional to the concentration of reactants taking part in the reaction raised to the power the stoichiometric coefficients as appearing in the balanced chemical equation. Means A moles of A plus B moles of B to form products. हमारा लॉ कहता है कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A raised to power A into concentration of B raised to power B. ये लॉ ऑफ मास एक्शन है. तो that is all in today's video. If you like the video, please do share and subscribe. Thank you. Have a nice day.